So hi everyone, my name is Manish Agarwal and I welcome you all to EduMo. So today in this video, we'll discuss about SSC selection post, topic wise weightage analysis of GS and GK section, right? Which most of you guys fear of. So let's start our discussion. So this is first slide. You all can read this. And now let's come to this part first. So let's have a look on the exam pattern. I've already discussed it in previous video, but those who are watching this video first, so let's take our discussion on this exam pattern first, right? So this exam consists of 100 questions consisting of total 200 marks and your total time given is 1 hour, right? And it has 4 sections, right? 25 questions from each section, and these sections are English, GS, Quants, and your reasoning section, right? So 25 questions from each section. This is the basic general pattern of this exam, right? And as you know कि इस एग्जाम में आप जितने मर्जी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. This exam is conducted in 3 levels. First one is your 12th, then 10th, and then your graduation level. So anyone can fill form in any of these categories, right? You can fill form in 12th also, 10th also, and graduation also. Like if you are a graduate, you can fill forms in any of these categories, right? And if you can also fill in all of these categories, right? So the basic pattern of exam in this is similar to your CGL and CHSL, which are also connected by SSC, right? So this was the basic general pattern of this exam. Now let's move forward and take a discussion to analysis, right? So these are the topics of general studies, which are the major topics which are asked. Like I have covered all 25 questions in this. So you will see all 25 questions and their respective sections, from which section they are asked, right? So first section I'll take is polity, right? This is the most important, most interesting. This is one of my favorite subjects. So from polity we have 3 questions in our graduation level and 12 questions, 2 questions at our 12th level, right? Next we come to history. In history we have 3 questions from graduation level, 4 questions from 10th level, and 5 questions from 12th level. So this is the most important part that you need to cover, right? I'll discuss also later how we can cover history, polity, and all these sections in the later part of this video. So polity we have discussed, right? 3 questions, so somewhere around 2 to 3 questions. This is also an important section. And next we have is history. So history mein again 3 to 5 questions. Next, current affairs. So this is the most important thing, and that needs this section needs a lot of preparation and a lot of practice, right? So current affairs में आपका mainly award section आ रहा है, then national and international importance के जितने भी current affairs आते हैं वो important है आपके इस section में, right? Awards आपके 1, 2 and 2 questions, so around 1 to 2 questions are coming from award section. Then your national and international, like इसमें कौन से events हो सकते हैं? Suppose कोई आपकी जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, या फिर कोई हमने किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई MOU वगैरह साइन किया है, तो वो इसके अंदर आ सकता है, राइट? कोई मीटिंग हुई है कोई किसी दूसरी कंट्री में, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमें पहले देखना है कि इंडिया में मतलब लाइक इंडिया का कोई लीडर किसी दूसरी कंट्री में गया है, किसी दूसरी कंट्री में कुछ प्रिसाइड किया है, मतलब लाइक तो ये सारे आपको देखने हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, right? यहाँ से around 3, 4 and 6 questions are asked from this section. So 3 to 6 questions from this section. Then comes the static GK part, right? Static GK part जो कि basically आप लूसेंट में से बहुत easily cover कर सकते हो इसको, right? तो यहाँ से 7 questions, 3 questions and 1 question. तो ये भी काफ़ी variety है यहाँ पे ना, आप लोग देखोगे काफ़ी variation है आपकी different levels में, इन levels में काफ़ी variation है. यहाँ पे 7 questions static GK से आ रहे हैं, यहाँ पे 3 and यहाँ पे only 1 question. Next we come to science section. Your biochemistry and physics. So including all these 3 sections, 3 to 4 questions are asked. 3 to 4 questions from your biochemistry and physics. Complete science section. And you can see आप कितना इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो, लाइक कौन सी चीज़ों को आपको प्रायोरिटाइज करना है, किसको लेस प्रायोरिटी पे रख सकते हैं. देन ज्योग्राफी पार्ट, इसमें मेनली आपका स्टैटिक पार्ट ही ज़्यादा पूछता है,
ठीक है। यहाँ से करंट से कुछ इतना वो आएगा नहीं, तो करंट में यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी जो जैसे आपकी जब आप लोग ये पढ़ रहे हो नेशनल इंटरनेशनल जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो जितने भी इंपॉर्टेंट वहाँ पे कंट्रीज डिस्कस हुई हैं आप उनको एक बार मैप पे लोकेट करके लाइक एक आइडिया होना चाहिए आपको, थोड़ा सा जोग्राफिकल आइडिया भी उसके बारे में होना चाहिए। सो यहाँ पे जोग्राफी से आपके पास 1 to 3 क्वेश्चन। आई होप ये इतना बात क्लियर है। क्विकली लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ ये स्लाइड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी वेटेज है, इसलिए लाइक जैसे अगर हम ये देखें मिसलेनियस पार्ट में आपका लाइक यहाँ पे कुछ भी कवर कर सकता है वो। जैसे यहाँ पे पिछले कुछ क्वेश्चन में लाइक कैसे पूछा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 0 क्वेश्चन मिसलेनियस में। लेकिन मिसलेनियस में कौन सा टाइप के आते हैं, इन्हीं में से कुछ टाइप जो थोड़े से ऑड बनते हैं वो मिसलेनियस में आ जाएंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ तो जैसे हमें यहाँ पे हम म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग वगैरह ये सब कर सकते हैं, लेकिन डांस में आपके क्या पूछ लेगा कि डांस में कौन से टाइप के क्लोथ्स वियर करने पड़ते हैं, राइट। तो ये मिसलेनियस में आ गया, राइट। तो डांस को हम जब कवर करें तो हम उसका थोड़ा मिसलेनियस भी देख सकते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा, कम चांसेस हैं। जैसे हम डांस जनरली हम क्लासिकल और फोक डांस हम कर लेते हैं, अब हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक वाइड एंगल भी लेना पड़ता है कि वो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस टाइप के क्लोथ्स उसमें वियर करने पड़ते हैं, राइट। ये सब भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, तो इसलिए इसको एकदम लास्ट के पार्ट में रख सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ कि आपको किस चीज़ को हाई प्रायोरिटी पे रखना है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो यहाँ पे म्यूजिक एंड डांस आपका सिंगल क्वेश्चन है, बाकी दोनों शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया। आर्ट एंड कल्चर एंड योर पेंटिंग, तो यहाँ से लाइक टेम्पल्स वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। टेम्पल्स वगैरह के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में हो गया। देन योर लाइक केव्स वगैरह के बारे में यहाँ से पूछ सकता है ना। तो ये सब आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है आपका। तो यहाँ पे अगेन आर्ट एंड कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे 1 to 2 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से भी। और ये हर आपके जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी के, हर एग्जाम आपको देखने को मिल जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। नेक्स्ट आपका बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। देन वाई टू स्किप दिस क्वेश्चन, है ना। तो करना ही करना है। बुक्स एंड ऑथर्स कोई बहुत ज़्यादा तो होते नहीं है, अगर आप हर मंथ के भी लास्ट 6 to 8 मंथ्स के आपको कवर करने हैं बस बुक्स एंड ऑथर्स। एट मैक्स आप 1 ईयर के कवर कर लो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, क्योंकि तो इतने ज़्यादा तो होते नहीं है। समय अराउंड अप्रॉक्स 70-80 कुछ बुक्स होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको आपको कवर करना चाहिए। यहाँ से पूछे जाते हैं, मतलब करंट अफेयर की अगर हम बात करें कि एग्जाम में जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो इन सेक्शन से ही आते हैं वो, राइट। गवर्नमेंट स्कीम्स, कुछ भी गवर्नमेंट स्कीम, कोई ऐप लॉन्च हुआ है, कोई वेबसाइट लॉन्च हुई है, या कोई एक प्लेस कुछ नया इनॉग्रेट हुआ है कुछ, है ना। तो जितना भी इनॉग्रेशन वगैरह होता है तो वो सब चीज़ें पूछ ली जाती है, कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, किसने इनॉग्रेट किया है, कोई बुक पब्लिश हुई है तो उसको उस बुक को लाइक किसने इनॉग्रेट किया है, तो इस तरीके से, राइट। सो यहाँ पे भी सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। देन आपका रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। यहाँ पे आपको इस सेक्शन में सिर्फ 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इससे आपको एक फेयर आइडिया लग सकता है कि लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कौन से सेक्शन से, कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, कौन से एरिया से कम क्वेश्चन आए थे। तो अभी जैसे अगर हम देखें कि इस स्लाइड में हमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले नहीं है, राइट। अगर हम देखें यहाँ पे सिंगल 1-2, तो इस वाली पूरी स्लाइड से मतलब इतना ही आपके 5-6 टॉपिक्स अगर आप कवर करोगे तो आपके मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट हो सकते हैं, राइट, अगर आप ये 5-6 टॉपिक्स करोगे। लेकिन अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएं तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वो आपका पॉलिटी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, देन ज्योग्राफी उसके बाद आ सकता है, लेकिन उसके बाद आपका एक करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके वाला पार्ट, राइट। अब क्विकली हम देखते हैं एक बार कि इन सब टॉपिक्स को हमें हम अगर बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करें तो कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, हम थोड़ा मीडिएट लेवल पे हैं तो हम तब कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग जीके उठाओ, लाइक जीएस अपना पूरा सेक्शन उठाओ, जीएस और जीके। उसके बाद आप करंट अफेयर्स को उठाओ, है ना। करंट अफेयर्स इज जनरली जनरल अवेयरनेस पार्ट, राइट। सबसे पहले आप लोग जीएस उठाओ। जीएस में आपके कौन से इसमें कौन से टॉपिक्स आ गए आपके, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये तो करने ही करने हैं, हिस्ट्री एंड पॉलिटी तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं टीसीएस। उसके बाद आपका आ जाता है ज्योग्राफी का वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप साइंस को भी देख सकते हो, राइट। अदरवाइज साइंस को कैसे कवर करना है, मतलब जिन लोगों का साइंस में इंटरेस्ट नहीं है पूरा थ्योरी पढ़ने में, जैसे इसमें तो क्या है, इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है, लाइक हिस्ट्री में कैसे बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से एंशिएंट मिडाइवल एंड मॉडर्न आपको कंप्लीट इसमें थ्योरी पढ़नी है, पॉलिटी में आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है, ज्योग्राफी में आपको थ्योरी पढ़नी है, साइंस में लेकिन पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है हमें। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है साइंस में उनके लिए क्या करना है, तो अब देखते हैं इसको फटाफट से। करंट अफेयर्स के लिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है, एनसीईआरटीज तो डेफिनेटली हम नहीं उठाने वाले, है ना। तो एनसीईआरटीज तो हम नहीं उठाने वाले, हमें क्या करना होगा, हम उठाएंगे लूसेंट, देन योर
किरण PYQ, राइट, लूसेंट एंड किरण PYQ। अगर आपने इसको भी एकदम रिलीजियसली फॉलो किया और अच्छे से इसको कवर करने की कोशिश करी, कुछ लोगों का होता है कि हमें लूसेंट पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग होता है, तो उन लोगों के लिए क्या है, पहले आप डायरेक्टली लूसेंट में उठाओ। आप लोग को क्या करना है, पहले आपको कोई वीडियो लेक्चर उठाने हैं, किसी भी ट्यूटर के आपको वीडियो लेक्चर उठाने हैं हिस्ट्री का, और कोई भी एक टॉपिक उठाना है। ऐसा नहीं कि पूरी हिस्ट्री पहले पूरी कथा की तरह सुने जा रहे हो और उसके बाद लाइक आप लूसेंट पिक कर रहे हो, लाइक ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक उठाना है, लाइक ये मैं बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको क्या करना है, किस तरीके से फॉलो करना है, राइट। हिस्ट्री में हम पहले हिस्ट्री की बात करें तो लूसेंट अगर आपको नहीं उठाने का मन है पहले, कि उसमें पॉइंटर्स होते हैं, तो उसमें आपको हो सकता है पहले समझ भी ना आए, तो आपको क्या करना है, किसी भी ट्यूटर की, एक अच्छे एजुकेटर की किसी की भी आपको वीडियो उठानी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, उसमें से उठाओ, फ्री वीडियो उठाओ, और क्या करो, लाइक एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपने उठाया है ना, एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो उठाओ, 3-4 घंटे में मैथमेटिक्स कवर हो जाएगा वो, बल्कि इससे कम ही टाइम होगा शायद। उसको उठाओ और एक दिन में कवर नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं बस पूरा सुने जा रहे हो। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1.5 के, है ना, 1.5 के 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। 1.5 में आपने जितना कुछ सुना, जितना कुछ सीखा ना, उसको फिर आप लूसेंट में अप्लाई करके देखो, लाइक लूसेंट में से आपको कितना गेन हुआ। मतलब पहले आप वीडियो देखो, वीडियो से आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा, उसके बाद आप लोग लूसेंट पिक करो। लूसेंट पिक करने के बाद जब दोनों यहाँ से मतलब वीडियो भी कर लिया और थियरी भी कर ली, उसके बाद आपको पिक करना है किरण PYQ। इतना जो आपने बात कर लिया ना, तो आपका 100% यहाँ से कवर हो गया। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग उसके बाद प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए ना, आप लोग उठा के देख लेना, मतलब प्रीवियस 2-3 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए वो उठा के देख लेना, आप डेफिनेटली उसको कर पाओगे। और जितने क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे हम कुछ क्वेश्चन, तो उसको हम लिख सकते हैं, लाइक अपनी सेपरेट नोटबुक में लिख सकते हैं, या फिर लूसेंट में ऊपर नोट्स बना के लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नए हमें दिखे, राइट। तो ये पूरा प्लान रहेगा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए वैसे सेम है, ठीक है, मैंने एक सब्जेक्ट के लिए बता दी, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए वैसे सेम है बिल्कुल। और जिन्होंने जैसे थोड़ा बहुत पहले से थ्योरी पढ़ रखा है ना, थोड़ी बहुत पहले से प्रिपरेशन है थोड़ी बहुत, तो वो डायरेक्ट लूसेंट उठाओ फिर किरण PYQ उठाओ। मैं गारंटी दे रहा हूँ इसके बाहर मतलब आपको करने की जरूरत नहीं, उसके बाद कुछ है भी नहीं, है ना, ये आप कर लोगे, ये मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। आई होप इतना बात क्लियर है आपको। और करंट अफेयर्स के लिए अब क्या करना होगा हमें, करंट अफेयर्स के लिए देयर आर सम फ्री सोर्सेज एंड देयर आर सम पेड सोर्सेज ऑल्सो। सो लाइक फ्री सोर्सेज में अगर हम बात करें तो ग्रेडअप इज बेस्ट, राइट, ग्रेडअप इज द बेस्ट। अगर हम फ्री सोर्सेज की बात करें, ग्रेडअप का इसमें आपका मंथली भी आता है, मैंने पहले ही बताया हुआ, एक मंथली भी आता है और उनका बाय मंथली भी आता है। तो आप बाय मंथली पे जाओ, यानी कि आपका जो 2 वीक की कंपाइलेशन है वो मिलेगी आपको, है ना, तो 2 वीक से कंपाइलेशन मिलेगी आपको एक साथ, उसको फॉलो करो। करंट अफेयर्स के लिए ऐसा बिल्कुल मत करने बैठना कि आप डेली 1 से 2 घंटे करंट अफेयर्स पे सिर्फ लगा रहे हो, ठीक है, इसमें जो ROI है वो बहुत लो है, तो मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग करंट अफेयर्स में 1 से 2 घंटे लगा रहे हो। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, अपने अगर अभी हम सिर्फ GS की बात करें तो GS में आप 1-2 घंटे इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप मैथ्स में अरिथमेटिक सेक्शन को और इंप्रूव करने में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो वहाँ उन एरियाज में हमें इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे ROI बहुत कम है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, राइट। GS के ये जो सेक्शन है ना, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, यहाँ से आपके समवेयर अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको इंप्रूव करो, इसको एकदम मजबूत करो, राइट। उसके बाद स्टैटिक पार्ट उठा लो ज्योग्राफी का और ये सब, है ना। सो आई होप इतना पार्ट क्लियर है, ग्रेडअप हो गया। अदरवाइज आपका पेड में आता है वो अफेयर्स क्लाउड, ये भी एक अच्छा काफ़ी अच्छा सोर्स है अफेयर्स क्लाउड, राइट। और या फिर आप स्टडी IQ के जो पेड वाला आता है उसको ही फॉलो कर सकते हो। आई होप इतना बात क्लियर है, और इतना जो आपने कर लिया ना, तो आपके सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर ही हो जाएगा, राइट। अभी भी अगर कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेरीज हैं आपकी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आई विल रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल। और उसके बाद भी अगर कुछ डाउट बच जाते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू दिस मोटिवेशन पार्ट। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल कोट, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, you have to take the stairs, right? Success have no shortcut, there is no shortcut to success, आपको करना ही पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना ही पड़ेगा। और एक बुक है काफ़ी अच्छी, एटॉमिक हैबिट्स, अगर आप में से किसी ने भी उसको पढ़ी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके बता सकते हो कि आपने उससे क्या सीखा। एक जो मेरी की लर्निंग है वहाँ से वो ये है कि उसमें क्या बताया हुआ है कि आपको क्या होता है, एक गोल होता है ना आपके पास कोई गोल है, लाइक सपोज आपको SSC फेज 9 क्लियर करना है, राइट, ये आपका गोल हो गया। अब आपको इस गोल को भूल जाना है, राइट, मतलब यू हैव टू रिमेंबर इन बैक ऑफ योर माइंड, बट अपेरेंटली आपको इसको नहीं देखना बार बार। आपको क्या करना है, आपको स्टेप्स को फॉलो करना है, लाइक आपको क्या करना है, आप यू नो कि दिस इज माई गोल, दिस इज द पॉइंट वेयर आई हैव टू रीच, सो यू हैव टू ब्रेक इट इन योर स्टेप्स, लाइक फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा, एंड फाइनली मेरा डेस्टिनेशन क्या होगा। आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। लाइक फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आप लोग बिल्कुल सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठाओगे, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, सिलेबस चेक करोगे,
ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, आप उसको देखोगे कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उन पे वर्क करोगे, देन आप फाइनली अपना स्टडी स्टार्ट करोगे, है ना। थर्ड स्टेप आ गया कि आप फाइनली अपनी स्टडी स्टार्ट करो। एंड फोर्थ स्टेप इज योर टेस्ट एंड प्रैक्टिस, राइट। प्रैक्टिस एंड टेस्ट, ये आपका फोर्थ स्टेप आ गया। फाइनल टेस्ट आपका ये आपका एग्जाम डे होगा, है ना, जिस दिन आप फोड़ोगे जाके। तो इस तरीके से यार आपका चलने वाला है ना। आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और आपका अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझ आया, थोड़ी बहुत भी मोटिवेशन मिली है, तो यार आप इस सेशन को ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, राइट। सो ये हमारे कुछ सोशल हैंडल्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट सबसे पहले चेक कर सकते हो, edimo.in। यहाँ पे अभी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, कुछ इंटर्न्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर रियली वर्किंग वेरी गुड हेयर। आप हमारी टेलीग्राम चैनल एडिमो ऑफिशियल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा फेसबुक पेज है एडिमो ऑफिशियल, आप इसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। टेलीग्राम चैनल पे हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर अस। एंड आई होप कि इस चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे भी जल्दी से जल्द हमारे पास 5000 सब्सक्राइबर्स होंगे। तो जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बस वो वीडियोस देख रहे हैं और जा रहे हैं, तो आई रिकमेंड कि सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको बहुत ही यूजफुल कंटेंट यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे मिलने वाला है, राइट। मैं बिल्कुल अब एक्टिव होने वाला हूँ यहाँ पे, अभी कुछ लोग भी नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सो दे विल ऑल्सो वर्क हेयर, और वो भी आपके लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट लेके आने वाले हैं। So thank you guys, thanks for watching this session. I hope this session helped you. So thanks for watching. Jai Hind.